morning children. So today we are going to study about verb. Verb is very important part of the grammar, and without knowing grammar we cannot complete the study of English grammar. In this picture you can see that there is a boy who is doing the skipping and he is doing jumping. That's why the word jump is action word, and all the action words come in the category of verb. You must have heard about the verb that they are action words. Now let's move on. So let's move to the definition of verbs. A verb is one of the most important part of the sentence. You know that every sentence is complete only by the using of any verb. It means the group of subject and verb is called a sentence. A sentence cannot be completed without using a verb. So it means that verb is the integral part of the sentence. No sentence can be made without using any verb. Let's see how. It tells the subject's actions, events or state of being. The state of being means situation, status of that person. Like number 2, that is subject actions, what he is doing. Like this time I am teaching, so this time I am teaching, the word teach I have used. The word teach is action word because I am teaching, I am doing the teaching. So the word teach is an action and it is telling about the subject. Which is the subject? Teacher is the subject here. Okay. Second one, that is event. Event, something is happening, someone there, and that time the verbs will be used. Like today is holiday. Today is holiday. It is also telling about the event. That's why the word is here is verb. It is telling about the event. ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो वर्ब होता है वो हमें 3 चीज़ों के बारे में बताता है. पहला एक्शन, सब्जेक्ट क्या एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के साथ क्या घटित हुआ. ये तीनों चीज़ ही हमें वर्ब में पता चलती है. जैसे मैंने अभी पहला एग्जाम्पल क्या दिया, टीचर इज टीचिंग. यहाँ पे वर्ड टीच वर्ड जो टीचिंग की तरह यूज किया गया है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्शन की तरह बता रहा है. दूसरा मैंने बताया टुडे इज हॉलीडे, ये इवेंट के बारे में बता रहा है. तीसरा सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग, लाइक आई एम स्टूडेंट. यहाँ भी क्या बताया जा रहा है, यहाँ भी आई के बारे में ही बताया जा रहा है कि आई क्या चीज़ है. तो आई के बारे में हमें क्या पता चला कि वो स्टूडेंट है. तो यहाँ पर भी आई के साथ जो वर्ड एम लगा हुआ है वो उसकी स्टेट के बारे में बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग. तो यहाँ पर एम जो हो गया वो वर्ब हो गया. तो हमें वर्ब क्या करता है, 3 चीज़ों के बारे में बताता है. क्या? एक्शन, इवेंट एंड स्टेट ऑफ बीइंग. क्लास अंडरस्टूड? काइंडली रिप्लाई मी. Okay. It is always found in the predicate of a sentence. Sentence के 2 पार्ट होते हैं, subject and predicate. It means except subject, what is the part rest in the sentence, that is called predicate. Okay. Next one. A verb is a word used to express an action, a condition or a state of being. The first example is given. The director is squeezed his nose. Okay? Squeezed his nose means दबा दिया, उसकी nose क्या कर दी, दबा दी. Squeezed his nose. So in this word, the squeezed word is verb because it is telling about the action of the director. It means what the director did. The director squeezed his nose. The action has been told by, expressed by this word squeezed. The squeezed word is verb. Next one, his nose is big. It is telling about the situation. It is telling about the situation of the noise. कि noise कैसी थी, बहुत ज़्यादा थी, कम थी. यहाँ पर वैसे तो यहाँ पे जो big word है ये क्या है, adjective है. इसकी सिचुएशन को बता रहा है, डिफाइन कर रहा है.
लेकिन डिफाइन करने के लिए हमने कौन से वर्ड का यूज किया है? इज का यूज किया है। डिफाइन करने से पहले मतलब इस एडजेक्टिव बिग और हिज नॉइस को बी के बीच में जो संबंध बता रहा है वो कौन सा वर्ड है? इज है। और इस वर्ड हमें क्या बताता है कि ये चीज अभी है। क्या बता रहा है? कि इट इज इन प्रेजेंट। सो यहाँ पे वर्ड इज क्या है? वर्ब है। नंबर थर्ड, द डायरेक्टर इज स्क्विशिंग हिज नोज। यहाँ पे इज स्क्विशिंग वर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है? वो इसकी एक्शन के बारे में बता रहा है। तो तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि वो उसके सेंटेंस के बारे में बताया, एक में वो उसकी सेंटेंस के बारे में बताता है, मतलब एक्शन के बारे में बताता है, दूसरा उस नॉइज की कंडीशन के बारे में बता रहा है, दूसरा उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ वर्ब। यहां तक बच्चों आपको समझ में आ गया? बच्चों प्लीज बताओ मुझे। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you tell me state of being again? State of being means status. WhatsApp पे आप स्टेटस पोस्ट करते हो? Yes, ma'am. हाँ, तो WhatsApp पे जब आप स्टेटस पोस्ट करते हो तो उसमें क्या बताते हो आप? कि आज आपने होली मनाई या आपने आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, आपने कृष्ण जन्माष्टमी में क्या क्या चीज की करी, तो मतलब आप क्या बताते हो? उस स्टेटस को, मतलब उस वक्त आप हो क्या। अभी मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तो तुम क्या बताओगे अपने स्टेटस के बारे में? कि मैं क्या हूँ? स्टूडेंट हूँ, तो ये आपका स्टेटस है। कोई टीचर है तो वो उसका स्टेटस है। प्रिंसिपल है तो ये उसका स्टेटस है। और अंबानी जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो क्या है? उसका स्टेटस है। स्टेटस मतलब कि उसकी क्या कंडीशन है। सिंपल भाषा में कहो कि क्या उसकी मतलब क्या कह सकते हो कि उसकी क्या स्थिति है, क्या उसकी परिस्थिति है, वो कहाँ स्टैंड करता है, उसे हम कहते हैं स्टेटस। कोई स्टूडेंट है, टीचर है, चाइल्ड है, टीनेजर है, कुछ भी है, तो वो क्या चीज है वही उसका स्टेटस है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Now come on the next point. Verbs. Verbs are three. First one, the action words. Action words you know, obey, sleep, run, teach, study. These are action words. क्योंकि इनसे क्या होती है? हमें क्रिया का पता चलता है कि क्या एक्ट हो रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब्स। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब्स। नंबर 2 है आपका लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब्स को जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स जो एक्शन और वर्ड में दोनों को लिंक करती है। क्या करती है? एक्शन और आपके सब्जेक्ट को आपस में लिंक करती है। जैसे मैंने कहा टीचर इज टीचिंग, इसमें वर्ड जो टीचर है वो नाउन है और टीचिंग क्या है? वर्ब है। जब वर्ड टीचर जो है वो है और टीचिंग क्या है? वर्ब है। उन दोनों के बीच में जो वर्ड इज लगा है वो क्या कर रहा है? उन दोनों को बारे में जानकारी देने के लिए हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर वो किसकी तरह यूज किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? नाउन एडजेक्टिव को आपस में जोड़ने या लिंक करने का काम करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब हम लोग इनके एग्जांपल्स देखेंगे। A verb that shows action is called an action verb, as I told you earlier. Next, the action verb tells what its subject does. What an action express? An action express that the subject is doing what? What the subject is doing, it has been told by the action verb. Like a child is sleeping. The word sleeping is expressing about the child doing. What the child is doing? Sleeping. So the word sleeping is action verb. Okay. Next one, the action can either by physical or mental. You know that some action can be done by using your hand, using your outer organs, but some action can be done with using your mind only, like dreaming. Dreaming is an action which cannot
which cannot be done with the help of your hand, with the help of your legs. Am I right, class? Yes, ma'am. Okay. So the physical actions are like the farmer feeds the chicken. All the chickens has been fed by the farmer. It means the word feed is telling about the action of the farmer. Okay. Next, the mental action. He likes the red rooster best. क्या कोई आदमी लाइक क्या हाथ से कर सकता है, पैर से कर सकता है? नहीं ना. तो लाइक्स कैसे करेंगे? अपने मन से. क्लास साइलेंट प्लीज. कीप साइलेंट. ओके. ही लाइक्स द रेड रूस्टर बेस्ट. मतलब यहाँ पे जो वर्ड लाइक है ये क्या बता रहा है आपको? मेंटल एक्शन के बारे में बता रहा है. हम केवल सोच के ही किसी चीज को लाइक कर सकते हैं. हम किसी चीज को सोच के ही ड्रीम कर सकते हैं. हम इमेजिन भी क्या कर सकते हैं? दिमाग से कर सकते हैं. लव भी क्या कर सकते हैं? दिमाग से कर सकते हैं. तो बहुत सारी ऐसी एक्शन वर्ब्स हैं जो हम केवल दिमाग से कर सकते हैं, जैसे लाइक करना, ड्रीम करना, लव करना और सोचना, आइडिया क्रिएट करना. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? दिमाग में होती हैं. वी डोंट डू these action, we cannot perform this action with the help of your hands and legs. Okay, now let's move on. Some action words are given you. Cuffed, ran, swallowed, sang, awake and cried. Yes, what happened? Would you like to ask any question? Kindly ask this question later. Please mute yourself. Everyone please mute yourself so that I can teach you smoothly. Kindly mute yourself, children. Okay, so next one, can you find the action verb in each sentences? Okay, now let's solve it. The girls danced in the recital. Okay, so which is subject? The girls subject. Dance is the action that is done by the girls. So in this sentence, dance word is action word. So the verb is dance. Next one, our mailman drove a funny car last week. In this sentence, the subject is our mailman. Kindly silent. I said kindly silent. I will give you the opportunity to solve. Okay? Now listen it very carefully because you know that now this time what I am teaching about the verb will not be taught in your next class. So kindly be silent and listen carefully. Our mailman drove a funny car last week. In this sentence the subject is our mailman and he is doing driving. Drove is written the second form of verb. Okay? So the drove is second form of the verb. That's why the word drove is telling about the action of our mailman. So the drove is verb. Third sentence, his teacher wrote the answers on the board. In this sentence, the subject is his teacher. Yes? Okay, and the teacher is subject and wrote word is the verb, because it is telling about the action of his teacher. Next, Elise worked on her homework last night. In this one, you can see that Elise is the subject and he is doing one action. The action is verb. So the verb is the verb of this sentence. Now, move on. Let's go to the form of the verbs. Form of the verb means like verbs, all the
are used in different way in the different time. Like this time I am teaching, but 4 days before I have taught you something, and tomorrow I will teach you something. So it means the word teach is used for three times. First time for the past, second time for the present, and third time for the future. So these verbs are used differently. So how you will use those verbs? All the verbs having 3 forms. Some verbs and their forms are different, like go. Go is having 3 forms: go, went and gone. Like go, went and gone. Some verbs having the same forms in all the tenses, like put. Puts, first form is put, second form is put, and third form is also put. So some verbs are there whose forms are same in all the times, but some verbs are those their forms are different in different tenses. So we will see about the forms of the action verbs. An action verb that describes an action that is happening now is called a present verb. प्रेजेंट टेंस वर्ब मतलब जो एक्शन अभी हो रहा है वो आपका प्रेजेंट टेंस वर्ब में आएगा. द बर्ड फ्लाइज. चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. थ्रू द स्काई. इन दिस सेंटेंस द बर्ड इज द सब्जेक्ट एंड फ्लाइज इज द वर्ब for the subject, the bird. In the next sentence, flies is a present tense verb because it is happening right now. यहाँ पे word flies जो है ये बता रहा है कि चिड़िया इस वक्त उड़ रही है, ना उड़ रही थी ना उड़ेगी. ये क्या कर रही है? अभी उड़ रही है. तो यहाँ हमारे क्या हो गया? present tense verb हो गया. Okay, next one. Many present tense verbs end with s, but some end with es or ies. अब आपको कैसे पहचानना है कि कोई एक्शन वर्ब प्रेजेंट टेंस में कैसे है? तो कुछ प्रेजेंट टेंस के वर्ब जो होते हैं उसमें s लगा होता है, किसी में es लगा होता है, किसी में ies लगा होता है, और किसी में तो नॉर्मली फॉर्म होता है. जैसे कि अगर हम गो हमने लिया एक एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे स्लीप वर्ड है, ठीक है, स्लीप में एस लगा हुआ है तो ये स्लीप्स हो गया. ठीक है, स्प्लैश हो गया. अगर इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ईएस लिखेंगे. और क्राई को CRY होता है इसकी एग्जाम्पल, सॉरी इसकी स्पेलिंग. और अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो IES लगा देंगे, मतलब वाई को हटा के हम IES लगा देंगे. ठीक है, तो हमने देखा कि अलग अलग वर्ब्स जब प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती हैं तो उनमें अलग अलग यूज किया जाता है, एस, ईएस या आईईएस. अब तुम लोग कहोगे मैं तुम लोग पता कैसे करेंगे कि हम एस लगाएं, ईएस लगाएं या आईईएस लगाएं? सिंपल है बच्चों. जिन सेंटेंसेस के पीछे, ये तुम लोगों को पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. पहले तो आप लोगों को ये चीज प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को उसको लर्न भी करना पड़ेगा. लाइक जैसे गो है, ये मैं आप लोगों को उन लोगों का बता रही हूँ जिनका कंफर्म है मुझे, मैं आप लोगों को वो बता दे रही हूँ. ठीक है, जैसे कि जो भी वर्ड्स वॉवल्स से खत्म होते हैं, जैसे वर्ड है गो एक एक्शन वर्ब है. ये किससे खत्म हो रहा है? ओ से खत्म हो रहा है. ठीक है, और ओ क्या है? वॉवल है. तो ओ वर्ड अगर लास्ट में आया, मतलब ओ अल्फाबेट अगर लास्ट में आया, या ए, ई, आई, ओ, यू कोई भी अगर लास्ट में आएगा तो उनके साथ हमेशा ES यूज किया जाएगा. क्या यूज करेंगे? ES. ठीक है, जिन भी सेंटेंस, जो भी वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में Y आता है, उनके लिए हम IES यूज करेंगे. जैसे क्राई है, फ्लाई है, इन सब के लिए हम IES का यूज करेंगे. ठीक है, और एस का हम यूज तब करेंगे जब वो लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा. क्या होगा? कॉन्सोनेंट. अब तुम लोग पूछोगे कि मैम यहाँ पे इस प्लेस में एच जो है वो तो वर्ब नहीं है ना, सॉरी वॉवल नहीं है ना,
मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पास वावेल नहीं भी होता है, उसके बावजूद भी वो ES का यूज करते हैं। इट डिपेंड्स हाउ मच यू स्टडी। जितना आप स्टडी करोगे यू विल गेट टू लर्न। ओके, सो इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग एंड हाउ मच यू आर स्टडिंग. You will use the verbs. With using these words, you will be able to know that which verbs uses S and which verb uses ES. Class, I think you must have understood what I have told right now. Kindly reply me. Yes, ma'am. Okay. Now let's move on. Okay. Now let's know about the past verbs. Verbs which tells about the action which happened some time ago are past tense verb. Class, I think you must have heard about the past tense. Past tense means to be there. The dog wanted a bone. In this picture you can see that the dog is there and he is holding a bone. And the dog wanted a bone. In this one, it is telling about the desire of the past, desire in the past of the dog. Okay, so it is telling about the action of the dog. Okay, the word wanted. You can see that in this sentence the wanted word is written. Ed is added with want. असली वर्ब क्या है बच्चों? मेन वर्ब क्या है? The root word is want. हमने क्या किया है? We have added the suffix ed. क्या करने के लिए? To make it past. To make it past. इसको हमने इसको क्या कर दिया? भूतकाल बनाने के लिए हमने ed का यूज कर दिया. जब ed का यूज हो जाए किसी भी सेंटेंस में तो समझ जाना कि वो सेंटेंस क्या है? पास्ट टेंस में. क्या है? पास्ट टेंस में है. Wanted is a past tense verb because the action has already happened. So class, you must have understood about the past tense. Whenever ed is written or added as a suffix in some verb, those words are in the past tense. पता चल जाएगा आपको. अगर यहाँ पे लिखा होता बच्चों the dog wants a bone, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये प्रेजेंट टेंस में. क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि s किस में लगता है? प्रेजेंट टेंस वर्ब में लगता है. और ed किस में लगता है? पास्ट टेंस वर्ब में लगता है. लेकिन ये सारे वर्ब्स के लिए सेम नहीं है. कुछ वर्ब्स अलग भी होती हैं लेकिन वो भी पास्ट या प्रेजेंट में होती है. तो आपको कुछ चीजें और हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी. ये तो सिर्फ एक छोटा सा डेमो है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पास्ट टेंस वर्ब्स लाइक ed, ied and e और ओनली d. अगर ये कहीं भी जुड़ा होगा तो वो पास्ट टेंस होगी. अब एग्जांपल्स देखो. क्लैप्ड वर्ड है. क्लैप्ड वर्ड में आप देखोगे CLAP, क्लैप अकेला एक रूट वर्ड है. जब हमने इसमें edu ऐड कर दिया तो हमने क्या बना दिया? इसको डबल p बना दिया. इसका एक रूल है बच्चों. रूल क्या है? सुन. जब भी किसी कॉन्सोनेंट के पहले कोई वावल होता है और उसके साथ हम ed यूज करते हैं उसको पास्ट टेंस में परिवर्तित करने के लिए, तो हम उसे डबल बना देते हैं. जैसे क्लैप को हमने क्या कर दिया है? क्लैप्ड कर दिया है, डबल p लगा दिया है. क्योंकि p के पहले क्या है? एक वावल है a. ठीक है. ऐसे ही दूसरा वर्ड है प्लेड. प्लेड में लास्ट में y है बच्चों. अब तुम लोग कहोगे कि मैम आपने तो बताया था कि y के आगे IES लग जाता है. हमेशा ऐसा नहीं होता. हर वर्ब में नहीं होता. कुछ ही वर्ब्स में ऐसा होता है. दोबारा बता दे रही हूं, ध्यान से सुन लो. कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें y को हटाकर IES कर देते हैं. लेकिन सारी वर्ब्स ऐसी नहीं होती. जैसे कि प्ले वर्ड है. प्ले वर्ड में अगर हमको इसका प्रेजेंट टेंस बनाना होगा तो जरूरी नहीं कि हम इसके आगे y को हटा के IES लगा दें. हम इसमें क्या लगाएंगे? केवल s लगाएंगे. उसी तरीके से प्लेड में ed लगा देते हैं. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके जो लास्ट में y से खत्म होते हैं तो उनका y हटाकर हम IED बना देते हैं उनका पास्ट टेंस बनाने के लिए. जैसे उसका प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए हम IES का यूज करते हैं. ठीक है. ट्राइज लिखा है ना, ट्राइड लिखा है तो IED लगा दिया. अगर इसी का प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? IES बनाते हैं. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो. आपकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा.
Now move on. Future verbs. Future verbs which tells about the action which are going to happen are future tense verbs. We will awaken at 6 a.m. Okay. Will awaken is a future tense verb because the action has not yet happened. आप लोग इस सेंटेंस में देख रहे होगे ये जो वर्ड विल है ना, ये क्या आपको बता रहा है कि ये एक्शन क्या होगा, फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड विल है, इट इज एक्सप्रेसिंग दैट दिस एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर। तो यहाँ पर ये जो वर्ड विल है और ये अवेकन है, ये आपको क्या बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है कि ये एक्शन फ्यूचर में हो। तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि सारे फ्यूचर टेंस में जितने भी फ्यूचर टेंस हैं आपके, अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होगा तो उसमें विल का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, विल या शैल, दोनों का यूज किया जाएगा। नाउ कम ऑन द एग्जांपल्स। Future tense verb uses special words to talk about the things like will happen, will going to, shall, aim to, etc. So going to start, shall email, will enjoy। अब इनमें देखो स्टार्ट वर्ड के साथ ना ed लगा है ना ies लगा है, enjoy के साथ ना ed लगा है ना ies लगा है, ना email के साथ ना ies लगा है ना ed लगा। इसे क्या पता चलता है कि किसी भी फ्यूचर टेंस में हम s, es, ied किसी भी तरीके का सफिक्स का यूज नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, उस वर्ड के बिफोर हम एक वर्ड, एक डेफिनेट वर्ड यूज करते हैं। कौन सा, shall and will। I think you must have understood about this. Class, now tomorrow we will talk about the linking verbs. Okay, thank you.